Hello, good morning, everyone. I see Devbhai, Spencer Beta, गुड मॉर्निंग Prabhaji, भैया। and good morning, and Krishnanji, and then I just heard Vandana Didi's voice also. So, welcome, everyone. So, we are meeting after 1 week's break. Last week, I had other commitments, so we could not hold this session. So, we continue with Vyavahaaraatmak Janvaad, and its English title at the moment we are taking behavior centered conversation. So we are doing its bilingual reading, and we are at page number 106 of the original Hindi book. Okay, so here what is being done is that Babaji in most of the Vads and Shastras, and in his Jivan Vidya Parichaya also, at some place once in the book, he describes the whole literature of Madhyas Darshan, the main 10 books. So this is the section in this book where he is talking about, he is explaining these books. So we have studied or read, and Babaji has explained which of the books. We can just look at them. One is Samadhanatmak Bhautikvad, which is resolution-centered materialism. Then Vyavahaaraatmak Janvaad, behavior-centered conversations. Anubhavatmak Adhyatmavad, realization-centered spiritualism. Manav Sanchetnavadi Manovigyan, humane consciousness-based psychology. Vyavaharvadi Samaj Shastra, which is behavioral sociology. Okay, so these 6 books we have already covered in this flow, and the remaining 4 books will and Avartanshil. This also we have covered actually. Avartanshil Arthashastra, cyclic economics, and Manav Vyavahar Darshan, philosophy of human behavior. Okay, so these 8 books we have read. Karma Darshan and Abhyas Darshan and Anubhav Darshan. These 3 books are remaining. So let us see how much we can cover today. So this is the point from where we'll start today. So I suggest that one of you can read it, Hindi as well as English, and then we can talk about it. कौन पढ़ेंगे? Any volunteers? कृष्ण भाई आप, हाँ मैं पढ़ वंदना दीदी सकती हूँ आप भैया। हाँ पढ़िए पढ़िए दीदी, हाँ। प्लीज वेलकम। मानवीय शिक्षा में कर्म दर्शन का अध्ययन कराया जाता है, जिसमें कायिक, वाचिक, मानसिक, कृत कारित अनुमोदित भेदों से हर मानव को कर्म करने की सत्यता को बोध कराया जाता है। इससे मानव का विस्तार समझ में आता है। इससे स्वयं में विश्वास का आधार बनता है। मानसिक रूप में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, ये सब कायिक और वाचिक मानसिक विधि से कार्य रूप में परिणीत होती हैं। फलस्वरूप इसका फल परिणाम होता है। फल परिणाम के आधार पर समाधान या भ्रमवश समस्या का होना पाया जाता है। जागृत परंपरा में किसी भी प्रकार की समस्या का कायिक या वाचिक मानसिक विधि से निराकरण स्वयं में ही निष्पन्न होना पाया जाता है। इस तरह से स्वायत्तता का परिणाम मिलता है। स्वायत्तता अपने में सर्वतोमुखी समाधान संपन्न ही है। जहां कहीं भी स्पष्ट रूप में देखने को मिलेगा, समस्या का निराकरण स्वयं में ही हो जाने की स्वायत्ता बताई गई है। कार्य का स्वरूप 9 प्रकार से बताया गया है। यह उत्पादन कार्य, व्यवहार कार्य, व्यवस्था कार्य में प्रमाणित होना देखा गया है। सभी कार्य इन 3 तरीकों से ही उत्पन्न होना देखा गया है। In humane education, education of the philosophy of human actions is facilitated, in which understanding of truth that all human actions can be categorized into physical, verbal, mental, doing, delegating, or deputing and assenting is developed, by which one understands the reach of humans. This becomes the basis of self-confidence. All activities which are mental in nature finally take a practical form by way of physical, verbal, or mental actions.
These actions have resulted, which are either in the form of resolutions or problems if under delusion. In awakened tradition, solution to any type of problem animates physically, verbally, or mentally in the spontaneous manner. Autonomy is evident in this manner. Autonomy in itself is nothing but accomplishment in comprehensive resolution. Wherever autonomy has been monitored, it could be clearly found that it is in the context of all problems getting resolved spontaneously. 9 categories of work have been described. Its evidence is seen in production, behavior, and orderliness. All works are accomplished only in these 3 domains. Good, Didi. Thank you. Okay, so this is Manviya Shiksha mein Karma. So Karma Darshan is the book, Manav Karma Darshan. So Babaji is saying in these 2 paragraphs, this paragraph, and it continues to the next paragraph also. So we'll continue that when we'll get there when we reach there. मानवीय शिक्षा में कर्म दर्शन का अध्ययन कराया जाता है, जिसमें कायिक, वाचिक, मानसिक, कृत, कारित, अनुमोदित भेदों से हर मानव को कर्म करने की सत्यता को बोध कराया जाता है. In humane education, study of the philosophy of human actions is facilitated, in which understanding of the truth that all human actions can be categorized into physical, verbal, mental, doing, delegating or deputing, and assenting is developed. Okay, so let's look at it part by part. Okay. One thing which is being said here is हर मानव कर्म करता है. This is the truth. Every human is doing some action. This is the truth. Now there are 6 categories in which it is being divided, where we can say that this is how a human takes actions. They are Kayik, Vachik, Mansik. This is one group. And then Krit, Karit. In this printing, it has come as, one word, but truly speaking, it is like this. Krit, Karit, Anumodit. This is how it is. Krit, Karit. So one set is Kayik, Vachik, Mansik, and the other is Krit, Karit, Anumodit. Okay, so I do not want to play with the Hindi text, but I have just shown this is how it is, factually mentioned in many other books. Here it is a typo mistake, Krit, Karit, Anumodit. So what we are saying is, or what Babaji is saying is, Kayik, Vachik, Mansik is physical, verbal, and mental. Okay, this is how we can see practical form of actions. We do it with our body. Speaking is also an action, so verbal actions and mental actions, in the sense that when I'm sitting alone and I'm thinking about something, many times I may not be sitting alone. I may be sitting with a few people, but what I have to say, what I do not want to say, I deliberate it within myself. All that is mental action. Okay, so physical, verbal, mental, this translates to Kayik, Vachik, Mansik. Now, Krit, Karit, Anumodit is what I do myself. Okay, so, it is an action that needs to be done and I physically do it myself. Second is Karit. Karit is like I tell someone else. Now, telling is in many ways. I can delegate it, I can order it, I can suggest it. So all that is Karit. So I am not doing something myself, but I'm getting it done. Yeah. Like if we are in a shivir and there is a cook who is making food for 100 people. No, he is actually making the food, but what is to be cooked is told by someone else, by someone who is managing the shivir there. Okay, if I'm sitting here and I want laptop and I tell my daughter to please bring the laptop, so the laptop comes from first floor to second ground floor. It is like
the action is done at my behest, but it is done by someone else. So I have ordered, suggested, deputed, delegated, all that is karit. And anumodit is action is done by someone else, and I just either approve it or disapprove it. I mention that, like I feel that this is right or wrong. Okay, so usko मतलब that is being categorized as assenting or dissenting. It can be either assent or dissent. Both of them are anumodit basically. So कायिक वाचिक मानसिक कृत कारित अनुमोदित. These are the 6 categories in which work can be or actions can be categorized. So this is what is being said here. In humane education, study of the philosophy of human actions is facilitated, in which understanding of the truth that all human actions can be categorized into physical, verbal, mental, doing, delegating, and assenting is developed. This understanding of this truth is developed. इस सत्यता का बोध कराया जाता है. When we open Karma Darshan, it is on the first or second page itself that Babaji has mentioned these categories of work. इससे मानव का विस्तार समझ में आता है. By this, one understands the reach of humans. Okay, so reach of humans is just not what they physically do themselves. What they get done also is the reach of humans. I mean, all good things and bad things, and it's no single individual who is doing it. It's a complete administrative machinery, complete government, complete institution, which is involved in that activity. The original thought is of some leader. इससे स्वयं में विश्वास का आधार बनता है. This becomes the basis of self-confidence. मानसिक रूप में जितनी भी क्रियाएं होती हैं वे सब कायिक और वाचिक मानसिक विधि से कार्य रूप में परिणीत होती हैं. All activities which are mental in nature finally take a practical form by way of physical, verbal and mental actions. Okay, मानसिक रूप में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, so initially it starts with some mental process. Okay, we think about something and eventually they take the shape of कायिक, वाचिक or मानसिक form. Okay, so this is what is being said here. One moment. All activities which are mental in nature, which are, like originally all activities are this is, I think, what is being meant here. All activities are originally mental in nature and finally take a practical form by way of physical, verbal and mental actions. फलस्वरूप उसका फल परिणाम होता है. फल परिणाम के आधार पर समाधान या भ्रमवश समस्या का होना पाया जाता है. These actions have results which are either in the form of resolution or problem if under delusion. Okay, so if there is the understanding, then the result is in the form of resolution, and if there is delusion, then what we have at hand is problem. जागृत परंपरा में किसी भी प्रकार की समस्या का कायिक या वाचिक मानसिक विधि से निराकरण स्वयं से ही निष्पन्न होना पाया जाता है. जागृत परंपरा में. Okay, so in awakened tradition, solution to any type of problem emanates physically, verbally or mentally in a spontaneous manner. It doesn't need an extra effort. ये अपने आप होता है. अपने आप मतलब स्वयं से ही निष्पन्न होना पाया जाता है. When we are in awakened tradition. Okay, so in awakened tradition, solution to any type of problem emanates physically, verbally or mentally in a spontaneous manner. इस प्रकार से स्वायत्तता का प्रमाण मिलता है.
autonomy is evidenced in this manner. If you remember, Babaji has earlier mentioned Swayat Manav, which has 5 or 6 merits. So Swayat Manav is autonomous person, autonomous human. So this is how you uh, this is how you evidence autonomy. Okay, that is in the form of resolution. स्वायत्तता अपने में सर्वतोमुखी समाधान संपन्नता ही है. Autonomy in itself is nothing but accomplishment in comprehensive resolution. Okay, it is nothing but accomplishment in comprehensive resolution. स्वायत्तता अपने में सर्वतोमुखी समाधान संपन्नता ही है. जहां कहीं भी स्पष्ट रूप में देखने को मिलेगा समस्या का निराकरण स्वयं में ही हो जाने को स्वायत्तता बताई गई है. Wherever autonomy has been mentioned, it would be clearly found that it is in the context of all problems getting resolved spontaneously. You don't have to make any extra effort. Okay, resolution comes out instantaneously, effortlessly, spontaneously. इसको जो है वो बताया गया है इस तरह से स्वयं स्फूर्त विधि से. कार्य का स्वरूप 9 प्रकार से बताया गया है. 9 categories of work have been described. यह उत्पादन कार्य, व्यवहार कार्य और व्यवस्था कार्य में प्रमाणित होना देखा गया है. Its evidence is seen in production, behavior and orderliness. सभी कार्य इन 3 तरीकों से ही संपन्न होना देखा गया है. All works are accomplished only in these 3 domains. Which 3 domains? उत्पादन कार्य, व्यवहार कार्य और व्यवस्था कार्य. Which is production, behavior and orderliness. Okay, so this is the first part of Karma Darshan. इसको we'll continue in the next paragraph also. इतना बताइए इसमें ट्रांसलेशन में, मीनिंग में, any doubt, any clarification are needed, we can talk about it. बढ़िया लगा भैया. हाँ जी, नमस्ते भैया. तो समझ नहीं आया, दोबारा बोले प्लीज. अच्छा लगा भैया. अच्छा, ठीक हो गया. ओके, गुड गुड. संजीव सर, दिव्य बात कर रहा हूँ. हाँ, सर बोलिए ये दिव्य. जो इनको प्रोडक्शन, बिहेवियर, ऑर्डरलीनेस को मेथड्स क्यों नहीं बोला गया, डोमेन क्यों बोला गया? One second. लास्ट लाइन. लास्ट में मुझे भी वो डोमेन का जरा लगा था, पर मुझे ख्याल नहीं आया. सभी कार्य इन 3 तरीकों से ही संपन्न होना देखा गया है. हाँ 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 हाँ. All So works are all accomplished only in these 3 domains. So domain तरीकों is like a तरीकों subject के वास्ते area. डोमेन लिखा है. But मुझे ऐसा लगा कि वो मेथड्स हैं जिसके थ्रू. methods or ways basically. Yeah, we Ways. can do that. In these 3 ways करें, methods करें, क्या ठीक लगता है? वेज सिंपल लग रहा है भैया. Ways ठीक है सर. This is good. This is good. This is good. तो इसमें सर वो पॉइंट भी था कि इसको 9 प्रकार से बताया गया, तो 9 प्रकार कुछ और हैं और उसको लार्जली 3 चीजों में कैटेगराइज नहीं. Okay, this is like initially I also got confused in my initial days. What are these 3? So let me write it somewhere. One moment. कहाँ गया verbal? I'll show it to you. Now I have opened Excel. Can you guys see it or no? No, we cannot. No. One moment. Okay. Now you should be able to see it. Yeah. ठीक है, तो इसको ना ऐसे बोला है दिव्य.
Okay, let us look at it like this. Okay, और 3 by 3 मैट्रिक्स से 9 हो गया वो सर. Exactly, exactly. हाँ. Okay. So there is some physical work which I can do. There is some physical work which I can delegate, and there is some physical work which I can give my assent to or dissent to. Okay. Similarly, there is some verbal work which I can do. There is some verbal work which I can delegate, and there is some verbal work which I can give my assent to or dissent to. Sure. Okay. And same with mental. So this is how they are 9. Okay, sir. Okay. अच्छा explanation था. हाँ. Okay, so this is the हाँ. essence of it. कृत, कारित और अनुमोदित. हाँ जी, है ना. वो डूइंग, डेलीगेटिंग, असेंटिंग को कृतकारित अनुमोदित बोला, कायिक वाचिक मानसिक को फिजिकल वर्बल मेंटल बोला. एंड देन दिस 3x3 मैट्रिक्स इज 9 टाइप्स ऑफ 9 वेज. बहुत अच्छा सर. और ये टाइप ऑफ वर्क थे ना सभी में. हाँ, दोबारा आते हैं, टेक्स्ट पे आते हैं. नाउ विल सी. ओके, सो ये जो 9 है, तो ये इसी तरह से है. 9 कार्य का स्वरूप 9 प्रकार से बताया गया है. राइट. सो 9 कैटेगरीज ऑफ वर्क हैव बीन डिस्क्राइब. या कैटेगरीज बोले या फॉर्म्स बोले, कार्य का स्वरूप 9 प्रकार से बताया गया है. You know, I mean, I'm not getting the right word, but the main point is the understanding. What are we meaning by these 9? So this matrix is what we are meaning by 9. है ना. वर्ड आप बताइए, वर्ड आप लोग बताइए कि किससे कम्युनिकेट होता है इंग्लिश में. 9 कैटेगरीज और 9 forms of work. Actually it is permutation combination. Right. If I have to explain it, I'll say permutation combination में 9 बनते हैं. But how to write it, I'm not sure. ये कुछ सजेशन आएगा तो that will be good. कैटेगरी तो नहीं आएगा भैया. हाँ, कैटेगरी तो नहीं आएगा. What is better than this? Nine forms of work have been described. फॉर्म्स और टाइप्स दोनों एक से ही लग रहे हैं ऐसे तो. परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक तरह का हो सकता है, दूसरा दूसरे तरह का हो सकता है. फॉर्म्स ठीक रहेगा. अभी फॉर्म लेके चलते हैं. मतलब हमें, यू नो, द मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट वी हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. वी कैन कीप थिंकिंग अबाउट you know, what is the most suitable word here, and then we can review it later also. Sure. Welcome. Thank you. Okay. Anyone else? Anything else in this paragraph? Just one thing, we are from the first line. Yes. I want to mainly talk about this word delegating or deputing. So Yes. एक उसके साथ में एक third line भी है जिसमें लिखा हुआ है ये confidence को लेकर. This becomes the basis of self-confidence. So as per my understanding in this, here knowledge and experience, you know, drive these works. So basically, what knowledge I gain is how I'm going to put that into work. You know, how I think, how I you know, practically do something. Does that also apply when it comes to delegating? So basically, whose responsibility is it going to be? The person who delegates, or the person who accepts that delegated work or instructed work, or both? Yeah, I think it is both. You know, like it is very, very similar to when we were growing up, we learned how to drive a car. Okay, now our children are growing up and we sort of, you know, motivate them, we encourage them. You are growing up, you can drive a car. Now when they start driving, initially they are scared.
maybe can I drive? They try it a few times and, the car doesn't start or it stops in between. And then they are very scared to take it on road. Maybe I'll hit someone. And so what we are saying is, what is the basis of confidence? That I have understood it, I could do it, and you are like me, you can also do it. Okay. So all humans are of the same design. सबका डिजाइन सिमिलर है, राइट? मानव शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है. ह्यूमंस आर द कंबाइंड फॉर्म ऑफ बॉडी एंड जीवन. ये जो है ना, ये स्वयं में विश्वास का आधार बनता है, राइट? तो इसमें जो स्वायत्त मानव की जहां पर जैसे आगे चल के बात की है, तो देर आर 5 पॉइंट्स विच आर डिस्क्राइब्ड इन दिस स्वायत्त मानव. आप में से किसी को याद हो तो बताएं, बिकॉज इट इज हाई टाइम हम लोग इसको रिवाइज भी करते रहे. स्वायत्त मानव के 5 पॉइंट्स आप में से कोई याद कराएगा तो अच्छा रहेगा. भैया, है ना? स्वयं में विश्वास, यस, श्रेष्ठता का सम्मान, यस, प्रतिभा और व्यक्तित्व का संतुलन, यस, एंड सामाजिक व्यवहार में सामाजिक, सामाजिक, हाँ, एंड आत्मनिर्भर, स्वावलंबन, व्यवसाय में स्वावलंबी. ठीक व्यवसाय है, में स्वावलंबन. व्यवसाय. तो ये जो सबसे पहला वाला इसमें पॉइंट था ऑटोनोमस पर्सन का, वो क्या था? स्वयं के प्रति विश्वास, विच इज confidence in oneself or self confidence. Now, what is the basis of self confidence? I have understood myself completely. I have no doubt about my design. I have no doubt about what I am. Okay. So when we have this confidence, what is that state of undoubtedness, like where I am without doubt? That state is, I am the combined form of body and jivan. Okay. So I have 2 needs, of body and of jivan. Okay. I can fulfill both these needs. This becomes the basis of self-confidence. And you can also do it. So in relationships, when I'm guiding my let's say family members or whomsoever I have accepted as my relative, as my own, to them what I'm saying is that I have understood myself and I could live happily. You also can understand yourself completely and you also can live with continuous happiness. ओके. ये ओवरऑल जो है ना, अपने को समझना एंड एग्जिस्टेंस को समझना, और हम फिर इसमें विश्वास पूर्वक जी पाते हैं. तो ये सत्य बोध के साथ में ही होता है. ये सारी चीजें जो दे गो हैंड इन हैंड. तो ऑल दिस बिकम्स द बेसिस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस इन वनसेल्फ. दिस बिकम्स द बेसिस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस. मैं भैया देव भाई इसको ऐसे देख रहा हूँ. जी भैया, हेल्प्स. थैंक यू सर. वो ऑटोनोमस पर्सन के 5 एक बार अगर आप प्लीज रिपीट कर देंगे तो हाँ, मैं कॉन्फिडेंस. उसको यस मैं एक काम करता हूँ, मैं उसको ना एक सेकेंड, लेट मी सी. इसी बुक में कहीं पे होना भी चाहिए. लेट मी सर्च. व्हाट विल आई सर्च? ऑटोनोमस ही सर्च करते हैं. ऑटोनोमस. Okay, I can't find it in this book, but let me write it here. So we go back to where we were. Okay, and इसी में ही लिखने की कोशिश करते हैं. Okay, so these 6 merits are self-confidence. हाँ जी, किशन भाई बताते जाइए. स्वयं के प्रति विश्वास, प्रतिभा और श्रेष्ठता का सम्मान. ओके, सो रेस्पेक्ट फॉर एक्सीलेंस, प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन, बैलेंस इन टैलेंट एंड पर्सनैलिटी,
व्यवहार में सामाजिक, सामाजिक, सोशेबिलिटी इन बिहेवियर, और व्यवसाय में आत्मनिर्भर। व्यवसाय में स्वावलंबी, सो सेल्फ रिलायंट इन प्रोफेशन। ये जो है ना, दीज आर द 5 मेरिट्स ऑफ एन ऑटोनोमस पर्सन। तो Confidence in oneself, respect for excellence, balance in talent and personality. Talent is what I know. Personality is the living aspect. You know, the manifestation aspect. How it shows in my living. So there has to be an autonomous person will have a balance in talent and personality. You know, in its absence, practically what happens is the way we all must, and everyone else also, we all must have seen some people, like do not know much, but in their living, they try to demonstrate that I know a lot. Okay, so talent is less, but the showing part is more. Okay, so then this balance is missing. And the other situation can also happen, that you know a lot, but somehow due to lack of self-confidence, it is not coming out in living. Okay, so then also the balance is missing. So what I know and how I live, and then gradually build on that. What I know keeps on increasing, and then it keeps on showing in my living also. इसको कह रहे हैं स्वायत्त मानव में बैलेंस इन टैलेंट एंड पर्सनैलिटी। एंड यहाँ पर जो प्रतिभा है वो ज्ञान से जुड़ता है, और बिल्कुल नोइंग, नॉलेज, जो है बिल्कुल व्यक्तित्व जो है वो विवेक और विज्ञान से जुड़ जाता है, ऐसा है। पर्सनैलिटी को जो है ना 3 पार्ट्स में बोला है, आहार, विहार, व्यवहार। ओके, इंग्लिश में बोलेंगे तो फूड, लाइफस्टाइल एंड बिहेवियर। ऐसे करके पर्सनैलिटी को 3 पार्ट्स में बोला है, आहार, विहार, व्यवहार, विच कैन बी ट्रांसलेटेड एज फूड, लाइफस्टाइल एंड बिहेवियर। व्हाट आई ईट, हाउ आई लिव एंड हाउ आई बिहेव, दिस इज पर्सनैलिटी। कुछ बोला कृष्ण भाई आपने? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ अब आई है आवाज। हाँ जी, बताइए। नहीं, वो कृष्ण सर की नहीं आ पा रही। कृष्ण भाई की नहीं आ रही थी। ठीक है, ठीक है। सिमिलरली दिस पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इट टुक मी सम टाइम टू फिगर आउट। ये व्यवहार में सामाजिक जो है ना, इसको हिंदी में कहा व्यवहार में सामाजिक, and English we are saying is sociability in behavior. Like it is not mixing up with people. Sociability in behavior is I easily mix up with people. Initially, in my ignorance, I misunderstood it like this. It was later on when someone explained to me, and I sort of make it a point now to explain it whenever I am talking about it. Sociability in behavior is that whatever I am doing, whatever I am thinking, whatever I am talking about, in all my actions, Akhand Samaj is in my vision. Okay, the undivided society is what I have in my vision. All my actions are aligned with undivided society, अखंड समाज। तो व्यवहार में सामाजिक, समाज का मतलब अखंड समाज है इसमें। ओके, सो उसी के विजन के साथ में मेरी सारे एक्शंस जो है ना वो एसोसिएटेड। Whatever I am doing, whatever I am thinking, whatever I am talking, everything is aligned with the vision of undivided society. इसको कह रहे हैं sociability in behavior. Okay, in its absence, it is like my company, my family, my country, my religion. Okay, none of them is undivided society.
कनेक्टेड टू ऑल, कनेक्टेड टू ऑल, बिल्कुल सह-अस्तित्व। ठीक हो गया दिव्य इतना? कुछ सर, मैनी इसको हटा थैंक्स। दें। वेलकम ये वेलकम, बढ़िया, ये गुड। सामाजिकता का बहुत अच्छा बताया। यानी कि मुझे इतना क्लियर तो नहीं था। बस सामाजिकता यानी मैं सोशल में नहीं तो नहीं मान रहा, उससे तो कुछ विशेष होना चाहिए था, कनेक्शन वगैरह। पर ये हाँ, सार्वभौमिकता और ये सामाजिकता है, ये एक चीज सामाजिकता मतलब अखंड समाज, मतलब ये अपने में जो है ना, मतलब दिस हैज टू बी वेल एस्टेब्लिश्ड। बहुत अच्छा बताया भैया, क्लैरिटी हुई थोड़ी। ठीक है, गुड। तो आगे बढ़ सकते हैं। आगे कौन पढ़ेंगे नेक्स्ट वाला सेक्शन? पढ़ता हूँ भैया। हाँ जी, एक सेकेंड। यस, जी, यहां से कर सकते हैं, करेक्ट। जी भैया। इन सभी एक का सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। रामेश्वर भाई, गुड मॉर्निंग, नाइस टू सी यू इन द मीटिंग। भैया नमस्ते। नमस्ते, आ, नमस्ते। बस अच्छा लग रहा है, और मुझे लगा और मैं यहाँ जुड़ जाता हूँ। बस यही ठीक कह है। रहा था कि आपने बहुत अच्छी तरह से सामाजिकता वाला रखा। तो मैं अगर एक शब्द में कहें तो लक्ष्य के अर्थ में होना ही सामाजिकता है, हाँ हाँ, देखिए, मतलब जरूरी क्योंकि है कि एक ही। उसमें चारों हाँ, चीजें आ जाती हैं फिर। कौन सी चारों? चारों चीजें कौन सी? म्यूट हो गए आप। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब आई है भैया। आप चारों चीजें बता रहे थे, क्या हाँ, थी वो? मैं कह रहा था कि समाधान, समृद्धि, अभय और सहअस्तित्व, जब हम लक्ष्य के अर्थ में बात करेंगे तो जी जी, सामाजिकता बिल्कुल का। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जी ठीक है। भैया, हाँ, ठीक है। ये भाई यही जोड़ना था, बाकी हाँ तो बहुत हाँ, अच्छा लग रहा है। ठीक है, गुड गुड, वेलकम जी, भैया। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। हाँ, बताइए किशन भाई, वी कैन कंटिन्यू फर्दर। जी भैया। इन सभी कार्यों का उद्देश्य एक है, मानवाकांक्षा को सफल बनाना। यही मानव लक्ष्य होने के आधार पर कर्म तंत्र, व्यवहार तंत्र, समग्र व्यवस्था में भागीदारी करने का तंत्र, ये तीनों तंत्र मानव लक्ष्य को प्रमाणित करना ही है। इसी का नाम कर्म दर्शन है। कर्म दर्शन का संपूर्ण स्वरूप अपने में मानव जितने प्रकार के कार्य करता है, उसकी सार्थकता क्या है, कैसे किया जाए, इन तीनों विधा में अध्ययन कराता है। इससे मानव जाति मार्गदर्शन पाने की अथवा व्यवस्था में जीने की प्रेरणा पाना एक देन है। अतएव कायिक, वाचिक, मानसिक क्रियाकलापों में संगीतमयता की आवश्यकता पर एक अच्छा संवाद हो सकता है। मानव की संपूर्ण संवेदनाएं, अर्थात, भैया डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रहा क्योंकि पास में कुछ म्यूजिक आया उनसे? नहीं नहीं भैया, यू कैन कंटिन्यू। ठीक है। मानव की संपूर्ण संवेदनाएं, अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के रूप में पहचानी जाती हैं, जिसे हर सामान्य व्यक्ति पहचानता है। इसके नियंत्रण के लिए संपूर्ण ज्ञान, दर्शन, आचरण को संजो लेने का प्रमाण प्रस्तुत करना ही अभ्युदय समाधान है। इसका मुद्दा यही है कि कायिक, वाचिक, मानसिक रूप में एक रूपता चाहिए या नहीं। यदि चाहिए तो मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद में पारंगत होना आवश्यक है, नहीं की स्थिति में इसकी जरूरत नहीं है। Purpose of all works is to realize the human expectation. As this itself is the human goal, the purpose of all work in the three domains, production, behavior, and orderliness, is to authenticate the human goal. This is titled as the philosophy of human actions. What are the different types of work a person does, meaningfulness of the work done, and how to accomplish the work? Philosophy of human actions offers study in all these areas. Humankind getting guidance, in other words, getting inspiration to live in orderliness, is one of its gifts. Thus, there can be very fruitful discussions on the need for harmony
in physical, verbal, and mental activities. Sensory organs of humans are recognized as sound, touch, sight, taste, and smell. It is clear to everyone to be an evidence of being a cherisher of the complete knowledge, philosophy, and conduct, and being in control of the sensory stimulus indeed is comprehensive resolution. The point here is whether or not we want consonance, consistency, coherence in physical, verbal, and mental activities. If yes, then studying and mastering Madhyas Darshan coexistentialism is essential. If not, then there is no need to pursue it. बढ़िया भैया, thank you. Thank Okay, you. so let's continue line by line. इन सभी कार्यों का उद्देश्य एक है, मानवाकांक्षा को सफल बनाना. Purpose of all works is to realize the human expectation. Okay, human expectation क्या था? मानवाकांक्षा क्या है? समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व, रिजोल्यूशन, प्रॉस्पेरिटी. ऑल दिस वर्क्स आएगा भैया. हाँ, पर्पज ऑफ ऑल दीज वर्क्स. ठीक है, अब ऑल दीज वर्क्स पिछले से कनेक्ट हो रहा है. ठीक है, कार्य आ रहे हैं वहां पर भी, तो ओके. इन सभी कार्यों का उद्देश्य एक है, मानवाकांक्षा को सफल बनना. पर्पज ऑफ ऑल दीज वर्क्स इज टू रियलाइज ह्यूमन एक्सपेक्टेशन. यही मानव लक्ष्य होने के आधार पर कर्म तंत्र, व्यवहार तंत्र, समग्र व्यवस्था में भागीदारी करने का तंत्र, ये तीनों तंत्र मानव लक्ष्य को प्रमाणित करना ही है. ओके, as this itself is the human goal, the purpose of all work in the three domains, production, behavior, and orderliness, is to authenticate the human goal. Okay, तो सेंटेंस थोड़ा सा हिंदी में भी थोड़ा इंटरप्रेट ही अपने तरीके से जैसा ठीक लगेगा वैसा फिर ट्रांसलेशन होगा. यही मानव लक्ष्य होने के आधार पर कर्म तंत्र, व्यवहार तंत्र, समग्र व्यवस्था में भागीदारी करने का तंत्र, ये तीनों तंत्र मानव लक्ष्य को प्रमाणित करना ही है. इसी का नाम कर्म दर्शन है. तो इसको आई थॉट दैट इन ए सिंपल मैनर, जो मुझे समझ में आया, व्हाट आई अंडरस्टूड, एज दिस इटसेल्फ इज द ह्यूमन गोल. ओके, टू रियलाइज human expectation is itself the human goal. So as this itself is the human goal, the purpose of all work in the three domains, which are the three domains? Utpadan, which is production, Vyavahar, which is behavior, and Vyavastha, which is orderliness, is to authenticate the human goal. इन तीनों का भी काम जो है वो क्या है? Purpose of all the work is to authenticate the human goal, है ना? मानव लक्ष्य को प्रमाणित करना ही इन सबका काम है, बेसिकली ऑब्जेक्टिव है. इसी का नाम कर्म दर्शन है. दिस इज टाइटल्ड एज द फिलॉसफी ऑफ ह्यूमन एक्शंस. इसी का नाम, मतलब ये सारा जो है जिस बुक में रखा है उसी को कर्म दर्शन कहा है. सो दिस इज टाइटल्ड एज द फिलॉसफी ऑफ ह्यूमन एक्शंस. कर्म दर्शन का संपूर्ण स्वरूप अपने में मानव जितने प्रकार से कार्य करता है उसकी सार्थकता क्या है, कैसे किया जाए, इन तीनों विधा में अध्ययन कराता है. What are the different types of work a person does, meaningfulness of the work done, and how to accomplish the work? Philosophy of human actions offers study in all these areas. And धीरे से we have changed this offer को facilitates. Philosophy of human actions facilitates study in all these areas. Okay, क्या तीन एरियाज हैं उसमें? जितने प्रकार के कार्य करता है उनकी सार्थकता क्या है, कैसे किया जाए. ओके, तो इसको कहा what are the different types of work a person does, meaningfulness of the work done, and how to accomplish the work. इससे मानव जाति मार्गदर्शन पाने की अथवा व्यवस्था में जीने की प्रेरणा पाना एक देन है. Humankind getting guidance
In other words, getting inspiration to live in orderliness is one of its gifts. ओके, तो इससे मानव जाति मार्गदर्शन पाए अथवा व्यवस्था में जीने की प्रेरणा पाए, ये इस पुस्तक की देन है। ओके, देन है मतलब मैं इसको गिफ्ट की तरह से, मुझे लगा कि देन के लिए गिफ्ट वर्ड जो है यहाँ पर अप्रोप्रिएट है, लेकिन आप कुछ और ठीक लगे तो बता सकते हैं। Humankind getting guidance, in other words, getting inspiration to live in orderliness is one of its gifts. Okay. It is one of its objectives also, we can say. Okay. उनको गाइडेंस मिले और इंस्पिरेशन भी मिले व्यवस्था में जीने की, टू लिव सिस्टमैटिकली, टू लिव इन ऑर्डरलीनेस। अतएव कायिक वाचिक मानसिक क्रियाकलापों में संगीतमयता की आवश्यकता पर एक अच्छा संवाद हो सकता है। Thus, there can be very fruitful discussions on the need for harmony in physical, verbal and mental activities. Okay, इसको संगीतमयता को हार्मनी बोला। मानव की संपूर्ण संवेदनाएं अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस गंध के रूप में पहचानी जाती हैं, जिसे हर सामान्य व्यक्ति पहचानता है। Sensory organs of humans are recognized as sound, touch, sight, taste and smell. It is clear to everyone. है ना? इसे हर सामान्य व्यक्ति पहचानता है। It is clear to everyone. इसके नियंत्रण के लिए संपूर्ण ज्ञान दर्शन आचरण को संजो लेने का प्रमाण प्रस्तुत करना ही अभ्युदय समाधान है। ओके, नो ये सारी संवेदनाएं हैं, these are the sensory stimulus or sensory organs through which we get stimulus, and it is very easy for a deluded person to sort of get out of control, sort of to spend their lives chasing these sensory stimulus. So इसका नियंत्रण करने के लिए ही संपूर्ण ज्ञान दर्शन आचरण को संजो लेने का प्रमाण प्रस्तुत करना ही अभ्युदय समाधान है। To be an evidence of being a cherisher of the complete knowledge, philosophy and conduct of being in control of the sensory stimulus indeed is comprehensive resolution. So what is comprehensive resolution? To be an evidence of being a cherisher of the complete knowledge, philosophy and conduct. तीन चीजें बोली थी यहाँ पर, संपूर्ण ज्ञान दर्शन और आचरण। तो ज्ञान को नॉलेज बोला, दर्शन को फिलॉसफी बोला एंड आचरण को कंडक्ट बोला। And being in control of the sensory stimulus indeed is comprehensive resolution. Okay, if one is not in control of the sensory stimulus, okay, and gets swayed by it, then it is not resolution, then it is delusion only. इसका मुद्दा यही है कि कायिक वाचिक, the point here is, इसका मुद्दा यही है कि कायिक वाचिक मानसिक रूप में एक रूपता चाहिए कि नहीं। द पॉइंट हियर इज वेदर और नॉट वी वांट कंसोनेंस। ओके, नाउ कंसोनेंस इज लाइक कंसिस्टेंसी और कोहेरेंस इन फिजिकल वर्बल एंड मेंटल एक्टिविटीज, इनमें एक रूपता। सो एक रूपता को कंसोनेंस बोला है यहाँ पर, चाहिए कि नहीं चाहिए, दे आर अलाइंड विद ईच अदर। ओके, यदि चाहिए तो मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद में पारंगत होना आवश्यक है। इफ यस, ओके, द पॉइंट हियर इज वेदर और नॉट वी वांट कंसोनेंस। if yes means if we want consonance, then studying and mastering madhyasth darshan coexistentialism is essential. है ना, यदि चाहिए तो मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद में पारंगत होना आवश्यक है, नहीं की स्थिति में इसकी जरूरत नहीं है ना। If one feels that one doesn't need it, then there is no need to pursue its study. There is no need to pursue or study madhyasth darshan coexistentialism. Okay, so in a very straightforward manner, Babaji is mentioning it like this. बताइए, कर्म दर्शन को में क्या है, वो उसको सबको इसके साथ में इंगित रिलेट किया। सो इसको संवेदनाओं के साथ में भी इस वाले सेक्शन में स्पेसिफिकली रिलेट किया कि इसको जब इसके कंट्रोल में रहते हैं तो जो है वो समाधानित है व्यक्ति, और इसके ये कंट्रोल में नहीं है तो द पर्सन इज डिल्यूडेड।
आई वॉज नॉट श्योर अबाउट दिस वर्ड चेरिशर, आप लोग भी कुछ देख के बताइए। लाइक इसको कॉमन वे में ही देखना है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि समथिंग वेरी स्पेसिफिक और फिलोसफिकल इज देयर। इसके नियंत्रण के लिए, लाइक इन संवेदनाओं के, इसके नियंत्रण के लिए संपूर्ण ज्ञान दर्शन आचरण को संजो लेने का प्रमाण प्रस्तुत करना ही अभ्युदय समाधान है। Be an evidence of being a cherisher. संजो लेना, I was not sure. Like to collect, मेरे ख्याल से सेंस जो है कि लाइक टू कोलेट एवरीथिंग, लाइक इन सब चीजों को इकट्ठा करके उसका प्रमाण, सही जीने का प्रमाण प्रस्तुत करना ही अभ्युदय समाधान है। टू बी एन एविडेंस ऑफ बीइंग, मतलब सब चीजों को इकट्ठा करना। आई डोंट नो व्हाट कुड बी द वर्ड फॉर दैट। संजो लेना मतलब टू मोबिलाइज ऑल द रिसोर्सेस। So here the resources are ज्ञान दर्शन एंड आचरण। बताइए जिनकी इंग्लिश ज्यादा अच्छी है, एनी वर्ड विच फिट्स हियर बेटर। कृष्ण भाई, दिव्य देव भाई, अश्वनी भाई, वंदना दीदी, स्पेंसर। मेरी आवाज तो आ रही है ना? आ रही है भैया, आ रही भैया, लेकिन ये जो पर ये समझ में नहीं है इसके लिए कि बेटर नहीं हर इस भाषा की अपनी एक विशिष्टता होती है और कुछ शब्द उसके ही होते हैं। इससे हाँ जी, इससे बेटर मिल नहीं पा रहा है कुछ ऐसा। हाँ, ओके। नहीं नहीं, और लग रहा है कि होना चाहिए कुछ। और बहुत सिंपल बात है, को लेट करना यानी कि इकट्ठा करना, संजोना तो वो बराबर है, पर यहाँ वो कलेक्ट करना तो जरा भी ठीक नहीं लगेगा। ठीक ही लग रहा है, ये सोचेंगे, पर इसके बारे में सोचना तो चाहिए, आपने सही बताया। ठीक है, सिनोनिम्स में जाके देखेंगे कुछ होगा तो। ओके ओके ओके, ठीक है। तो अभी इसको फिर यहाँ पे कर लेते। सी द मेन पॉइंट इज व्हाट वी आर रीडिंग हियर। हमको ना बाबा जी अपने शब्दों में सारा वांग्मय का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। सो लाइक it's good to read it in Hindi and English. That is the idea, and we get a sense of it, even though the right words sometimes are eluding us, but at least we are getting a sense of it. That is more important. Then right words will also come up, आगे भी बढ़ सकते हैं। भैया सो ये लेट्स। जो इंग्लिश इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए बच्चे हैं उनको तो ये चाहिएगा ही। आगे की पीढ़ी तो ऐसी है कि जिसको 69 या 79 कहें तो भी कहते हैं इसका मतलब क्या है। तो बिल्कुल उनके ठीक। वास्ते तो ये दर्शन और जिस तरह से आप काम कर रहे हैं बहुत ही बढ़िया है, रियली 3 इयर्स। परंतु जो ये जिसको हिंदी नहीं आती है उनके वास्ते तो फिर ये इंग्लिश ही रहेगा ना, वो हिंदी के लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर ही रहेगा। नॉट तो ये रियली भैया, देखिए द वे आई लुक एट इट इज, हम लोगों को जिनको हिंदी आती थी, वी ऑल्सो कुड नॉट read these books and interpret it in the right way. So there is always a teacher or a resource person or a प्रबोधक who takes us through the books. तभी हमें बुक्स समझ में आई है। तो when we are talking, when we are reading this, when someone who doesn't know Hindi, when they will study it in English, they also will need a resource person or a teacher, and that सही है, resource person understands the concepts very clearly. That is the idea, है ना? सही है। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं होगा। सिर्फ पढ़ने से तो हमारा हिंदी में भी नहीं काम हुआ भैया, है नहीं ना? कोई चलेगा, और संस्कृत में आता हो तो भी नहीं चलेगा, सही बात है। है ना? तो तो शब्द इंग्लिश में पूरे भी ही जो पढ़ेगा वो उसको पढ़ाने वाला भी, देयर विल बी समवन हु इज एक्सप्लेनिंग इट, दैट
someone will have a clear understanding, and then they will play with some words, they will try out some words, and then the students will also, give some suggestions. I think this is how the translation will mature. नहीं, सही है भैया। नहीं, हिंदी आती है, प्रेम और सम्मान या कृतज्ञता हम कहाँ जानते थे किस अर्थ में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको अभ्यास दर्शन को भी देख लेते हैं। तो हु विल रीड इट? आप ही में से कोई पढ़े? सर मैं पढ़ देता हूँ। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। मध्यस्थ दर्शन अस्तित्ववाद के अनुसार अभ्यास दर्शन सर्व मानव के लिए अध्ययन के अर्थ में प्रस्तुत है। अभ्यास दर्शन अपने में कायिक, वाचिक, मानसिक, कृत, कारित, अनुमोदित क्रियाकलापों में सार्थकता का प्रतिपादन है। अभ्यास दर्शन समझदारी के लिए अभ्यास को स्पष्ट करता है एवं समझने के उपरांत समझदारी को प्रमाणित करने की अभ्यास विधियों का अध्ययन कराता है। अध्ययन होने का प्रमाण अनुभव मूलक विधि से प्रमाणित होने का प्रतिपादन है। अनुभव सह अस्तित्व में होने का स्पष्ट अध्ययन करा देता है, बोध करा देता है। इससे मानव परंपरा में प्रमाणित होने का मार्ग प्रशस्त होता है। इसमें जीवन समुच्चय का और दर्शन समुच्चय का आशय सुस्पष्ट हो जाता है। In Madhyasth Darshan coexistentialism, the philosophy of human practice is also available for study. This book is a pointer to the meaningfulness of the physical, verbal, mental, doing, delegating, and assenting activities. It explains how to practice towards the goal of understanding, and to those who have understood, the book guides in the study of methods of practice so as to authenticate their own understanding. Authenticity by realization rooted method is a pointer to, in the bracket, testimony of, the evidence of completion of study. It is the realization that offers the study as well as the understanding that all entities are in a coexistence. It paves the way for evidences in human tradition. The meaning of Jivan collective, in the bracket, constituents of Jivan, and of philosophy collective, in the bracket, constituents of philosophy, becomes absolutely clear in this. Good, Divya. Thank you. Okay, and I think Abhyas Darshan also is explained in 2 paragraphs. So first, let us read this first one. For me personally, this Abhyas Darshan, once Shri Ram Bhaiya explained it in one of the sessions, and I liked that explanation most, and I'm tempted to share it with all of you. So far, I had been looking at the word practice as something which we practice physically. Like when a child is growing up, practice to talk and practice to write and practice to walk, and like as we grow up, practice to cycle, and practice to drive a car, practice to cook food. So practice is mostly we had seen in the physical sense. So here, what I understood Shri Ram Bhaiya was explaining was there is an important aspect of our living, which is mental practice. Okay, mental practice is what Babaji is saying here is abhyas. So abhyas is actually practice. Okay, but specifically when we are talking about Abhyas Darshan, it is not about the physical practice of doing something, which is how normally practice word is associated with. Here practice is the mental practice. जब हम बात करते हैं कि when we talk about undivided society, how much mentally I am clear about undivided society. Okay, how much mentally I am clear about what are the hindrances due to which we haven't reached the stage of undivided society. When I do this mental practice, the steps regarding how we will reach undivided society become clear to me.
Okay, so every physical practice, in the background there is a mental practice. Okay, so that conceptual clearance, that understanding, that knowledge, all that is what is we are talking about abhyas darshan. So I've read the book, and what Babaji has done in the book is that there are small write-ups, maybe from a half page to going to 5 pages and 10 pages each, and I don't exactly remember, but there are almost 100 such sections. So Babaji has taken a topic and given an explanation, and in light of awakening regarding that. Okay, so all the words which we normally use, how an awakened person looks at them, and then जैसे हम अभी बात कर रहे थे अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था, है ना, इन सारी चीजों का इस तरह से करके अभ्यास दर्शन को जब हम प्लेस करें, तो अपनी मेंटल क्लियरिटी रिगार्डिंग व्हाट is being done physically by me, by my family and by society at large, इसको जो है देखने वाला काम जो है ना, दिस लिंकेज इज द फिलॉसफी ऑफ ह्यूमन प्रैक्टिस. सो प्रैक्टिकली जब मैं अपने में देखने जाता हूं, तो हम सब लोग लाइक वी आर बिजी फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग इन डूइंग समथिंग. वी हैव ए जॉब टू डू, वी आर इन सम प्रोफेशन, वी हैव सम बिजनेस, we are doing some activities in the family also. ये सब को मैं एक प्रैक्टिस के रूप में देखूं और देखता रहूं. I need to look at that and look at it continuously. Okay, that is the practice I have to develop. Okay, whatever I am doing really makes sense to me. Okay, I want to make a lot of money. That is what is my pursuit, let us say. Now, when I start looking at it in light of Abhyas Darshan or philosophy of human practice, I start doing a mental activity regarding why I am pursuing money. ओके, तो वो एक बार जब देखना शुरू करते हैं, तो उसके पिटफॉल्स भी क्लियर होते हैं. लाइक चीजें जो है उसमें, आई प्रोबेबली वांटेड टू बिकम हैप्पी, बट देन विल मेकिंग मनी मेक मी हैप्पी? नो, दिस इज ए मेंटल एक्टिविटी. ओके, इस तरह से करके इसको प्रैक्टिकली जो है हम देख सकते हैं. Otherwise, if we see, deluded human person is also very busy from morning to evening. They are also doing a lot of things. Their families are also very busy. Where are they reaching? एक बार इस तरफ ध्यान जाना शुरू होता है. Where am I reaching? Okay, where am I going? Where is my family going? ये सारा इसके पीछे जो है ये अभ्यास करने की बात है. ऐसा करके जो है मेरे को ये काफी अच्छा एक ध्यान आकर्षण हुआ. when श्री राम भैया ड्रू अटेंशन टू दिस, कि ये प्रैक्टिस जो है ये इसको मेंटल के साथ में, मेंटल एक्टिविटी के साथ में जोड़ना जो है वो ठीक है. अदरवाइज हम लोग प्रैक्टिस को फिजिकल सेंस में लेते हैं मोस्टली. दिस वाज ए वेरी गुड थिंग दैट ही पॉइंटेड भैया आउट. अभ्यास दर्शन का पठन और ये चल ही रहा है. सुबह सुरेंद्र पाल भैया कराते हैं संडे को, अभी हमने पूरा किया. ठीक है, 6:30 से ठीक 8. है, बढ़िया बढ़िया. वो अभ्यास दर्शन का पठन कराते हैं. अभी अभ्यास दर्शन, कर्म दर्शन पूरा हुआ और अभी अभ्यास ठीक है, दर्शन चल रहा है. बढ़िया 1-1.5 साल से चल रहा है. पहले व्यवहार वो दर्शन हुआ, फिर कर्म दर्शन हुआ, अभी अभ्यास दर्शन चल रहा है. ठीक है. तो आज सुबह 6:30 से 8 वो सुना, और उसके बाद ये आपने बताया, काफी अच्छा लगा. ठीक है, गुड. ठीक है, तो इसको अब एक बार बाइलिंगुअल भी देख लेते हैं. मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद के अनुसार अभ्यास दर्शन सर्व मानव के लिए अध्ययन के अर्थ में प्रस्तुत है. इन मध्यस्थ दर्शन को एग्जिस्टेंशियलिज्म, द फिलोसफी ऑफ ह्यूमन प्रैक्टिस, इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर स्टडी. अभ्यास दर्शन में कायिक, वाचिक, मानसिक, कृत कारित अनुमोदित क्रियाकलापों में सार्थकता का प्रतिपादन है. This book is a pointer to the meaningfulness of physical, verbal, mental, doing, delegating and assenting activities. Okay? ये पीछे भी आया था, देव भाई कुछ बोलने वाले थे और उसमें फिर ये रह गया. ये जो हम कह रहे थे ना, ये इसको कारित को, कृत कारित अनुमोदित में कारित को डेलीगेटेड कहें या डिप्यूटेड कहें या कुछ और कहें. Okay, this I thought that we should have discussed. I missed out on that. Devbhai, you were mentioning it, right? जी भैया, मैं बस
नहीं, वर्ड पे इतना स्ट्रेस नहीं था मेरा मेरा मतलब यही था कि समझने के लिए। would it be whose response where the responsibility lies actually, the person who asks or delegates, or the person who receives that instruction or order or delegated work. हाँ, तो भैया मेरे को लग रहा है कि हाँ, बाबा कारित जी के ने। वास्ते दोनों शब्द हाँ जी, बराबर नहीं है, पर कारित का सही शब्द मुझे कारित यानी करवाना, तो डेलीगेट तो करवाना, यानी किसी सौंपना हुआ, और डेप्यूटेड बिल्कुल। भी यानी कि ऐसा ही कुछ हुआ, यानी किसी हाँ करना कि भाई हाँ, ये काम करेगा। राइट तो राइट। तो दोनों मेरे को शब्द कुछ ठीक ही ना, लग रहे हैं भैया। मुझे, हाँ, मुझे तो कुछ तो लिखना था, इसलिए मैंने लिखा, ठीक मिलजुल के निकालेंगे। हाँ, पर कारित के वास्ते जैसे मृदु हास्य के वास्ते इंग्लिश में कोई शब्द नहीं मिल सकता, दो हम्म तीन ही शब्द हैं। और हम्म हंसने के वास्ते या ये हास्य के वास्ते आप हिंदी में 10-12 शब्द हैं। हम्म। तो इसमें ये कारित के वास्ते शब्द ढूंढना पड़ेगा भैया। ठीक है, तो अभी के क्या? लिए ऐसे लेके चल सकते हैं, मतलब इससे थोड़ा सेंस आ जाता है, अनलेस समवन इज ए बेटर ऑप्शन। हाँ ठीक है। मुझे तो ठीक लग रहे हैं भैया ये अल्टीमेटली, मतलब कि मुझे नहीं ये काम कंप्लीशन, मतलब कंप्लीशन का मेरा गोल है और उसमें मैं भागीदार हूँ, और जिसमें मैं दूसरों की मदद ले रहा हूँ, तो उसमें डेलीगेशन का पार्ट भी आ गया, या जिसको हम्म और भी वर्ड्स यूज किया था आपने, वो थोड़े से हार्श हो जाते हैं, थोड़े से जैसे इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर लिखेंगे तो। हाँ, बट आई थिंक एग्जैक्टली। these आर, एट लीस्ट टू मी इट these sound लुक्स well. गुड, ओके। Yeah. ठीक है, ठीक है। कारित का मतलब अगर देखा टू गोट इट डन या ऐसा कुछ होगा ना, हाँ गेट। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उसके वास्ते ये दोनों शब्द ऐसे तो भाषा के रूप में तो नहीं दिख रहे, पर अभी कोई शब्द नहीं है तो अपन चल Delegating the work also means getting the work done. नहीं, Right? डेलीगेटिंग तो ठीक है, समझ सकते हैं। Okay. ठीक ठीक है। आई एम नॉट दैट गुड एट इंग्लिश, परंतु ऐसा लग रहा है। हम्म। ठीक है, तो अभी हमारे पास में कुछ ऑप्शंस आ गई, नाउ वी हैव डिक्शनरीज आल्सो। बाद में, है ना, अपना अपना रिसर्च कर सकते हैं, एंड दीज आर गुड थिंग्स। मेरे को लग रहा है कई चीजों की तरफ हमारा ध्यान जैसे जाता है, सो हमारा भी धीरे धीरे जो है ना, ये वर्ड्स की तरफ ध्यान जाएगा रोजमर्रा की भाषा में, एंड विल कम अप विद योर बेटर ऑप्शंस। तो अभी ऐसा इसको लेके चल सकते हैं, आई थिंक। भैया ये तो बहुत ही अच्छा हो रहा है। हमने यानी कि किसी भी पठन या उसमें ज्यादा जितना ध्यान जाता है, उससे यहाँ पे बहुत अच्छा अभ्यास हो रहा है हर चीज का, क्योंकि बराबर एक एक वाक्य को इस तरह से लेते हो तो आता है दिमाग में। रियली दिस इज ये 8 से 9:30 रविवार का बेस्ट सेशन आई अटेंडेड। चलिए, थैंक ठीक यू है। वेरी तो मच, थैंक नहीं एवरीबॉडी। नहीं, वेलकम भैया, वेलकम भैया। आप आते हैं तो मिलजुल के हो जाता है, मेरे को भी अच्छा ही लगता है, मेरा भी ध्यान कई चीजों पे जाता है आपके सवालों से। आगे बढ़ते हैं। अभ्यास दर्शन अपने में कायिक वाचिक मानसिक कृतकारित अनुमोदित क्रियाकलापों में सार्थकता का प्रतिपादन है। ओके, दिस बुक इज ए पॉइंटर टू द मीनिंगफुलनेस ऑफ द फिजिकल वर्बल मेंटल डूइंग डेलीगेटिंग एंड असेंटिंग एक्टिविटीज। अभ्यास दर्शन समझदारी के लिए अभ्यास को स्पष्ट करता है। इट एक्सप्लेन्स हाउ टू प्रैक्टिस टुवर्ड्स द गोल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ओके, नाउ अब प्रैक्टिस किस लिए होगी? टुवर्ड्स द गोल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। नाउ दिस इज नॉट ए फिजिकल प्रैक्टिस, राइट? ये अभ्यास नॉर्मली फिजिकल सेंस में था। आई थिंक दिस डिस्टिंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे में एक बार सेट हो जाए। तो इट एक्सप्लेन्स हाउ टू प्रैक्टिस टुवर्ड्स द गोल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अभ्यास दर्शन समझदारी के लिए अभ्यास को स्पष्ट करता है एवं समझने के उपरांत समझदारी को प्रमाणित करने की अभ्यास विधियों का अध्ययन कराता है। And to those who have understood, the book guides in the study of methods of practice so as to authenticate their own understanding. है ना? तो एक बार कोई समझदार हो गया है तो वो दूसरा भी समझदार हो जाए, है ना? ऐसा अपने में ऑटोमेटिकली होता है, स्वयं स्फूर्त होता है। तो उसकी भी अभ्यास विधियां रहेंगी, उसके भी प्रैक्टिस, उसके भी मेथड्स ऑफ प्रैक्टिस रहेंगे। अध्ययन होने का प्रमाण अनुभव मूलक विधि से प्रमाणित होने का प्रतिपादन है। Authenticity by realization rooted
method is a pointer to or testimony of looks better, is a pointer to testimony of the evidence of completion of study. दोबारा से पढ़ता हूं. ऑथेंटिसिटी बाय रियलाइजेशन रूटेड मेथड, अनुभव मूलक विधि से प्रमाणित, है ना, अनुभव मूलक विधि से प्रमाणित हुआ. ऑथेंटिसिटी बाय रियलाइजेशन रूटेड मेथड. सो अध्ययन होने का प्रमाण, है ना, एविडेंस ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्टडी, का प्रमाण अनुभव मूलक विधि से प्रमाणित होने का प्रतिपादन है. So authenticity by realization rooted method is a pointer to testimony of the evidence of completion of study. अनुभव सह अस्तित्व में होने का स्पष्ट अध्ययन करा देता है, बोध करा देता है. It is the realization that offers the study as well as the understanding that all entities are in coexistence. इससे मानव परंपरा में प्रमाणित होने का मार्ग प्रशस्त होता है. It paves the way for understanding in human tradition. इसमें जीवन समुच्चय का और दर्शन समुच्चय का आशय सुस्पष्ट हो जाता है. The meaning of जीवन collective, constituents of जीवन, and of philosophy collective, constituents of philosophy, becomes absolutely clear in this. तो इसको मेरा इंटरप्रिटेशन ऐसा है जैसा मैंने इसको देखा. तो अनुभव सह अस्तित्व में होने का स्पष्ट अध्ययन करा देता है, बोध करा देता है ना. तो रियलाइजेशन होने से, अनुभव होने से सब कुछ सह अस्तित्व में है, उसका अध्ययन करा देता है, बोध करा देता है. इसको लिख रहे हैं, इट इज द रियलाइजेशन दैट ऑफर्स की जगह फैसिलिटेट्स. Facilitates the study as well as the understanding that all entities are in coexistence. इससे मानव परंपरा में प्रमाणित होने का मार्ग प्रशस्त होता है. It paves the way for evidences in human tradition. इसमें जीवन समुच्चय मतलब जो कुछ भी जीवन में है उसका सारे का कलेक्शन, और दर्शन समुच्चय, सो दर्शन में जो कुछ भी है उस सारे का कलेक्शन या सेट जिसको बोलते हैं ना, है ना, सुपर सेट ऐसी भाषा भी यूज करते हैं. तो मैं इसको भी फिलोसफी कलेक्टिव एंड जीवन कलेक्टिव लेके चल रहा हूं. जीवन समुच्चय को जीवन कलेक्टिव. तो जीवन कलेक्टिव क्या होगा? जीवन समुच्चय मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, इन पांचों का कलेक्टिव जो है इसको बोला, है ना. तो इसमें जीवन समुच्चय का और दर्शन समुच्चय का आशय सुस्पष्ट हो जाता है. द मीनिंग ऑफ जीवन कलेक्टिव एंड ऑफ फिलोसफी कलेक्टिव, दीज 4 बुक्स, है ना, व्यवहार दर्शन, कर्म दर्शन, अभ्यास दर्शन एंड अनुभव दर्शन, ऑल दीज 4 बुक्स, दिस इज द फिलोसफी कलेक्टिव, बिकम्स एब्सोल्युटली क्लियर इन दिस. ठीक है, तो इस तरीके से इसको एक पैराग्राफ में अभी अभ्यास दर्शन को रखा है. दूसरे को भी पढ़ सकते हैं, अगर इसमें कुछ पॉइंट हो तो बताएं. या थोड़ा स्पष्ट करिए ना इसको. अध्ययन होने का प्रमाण अनुभव मूलक विधि से प्रमाणित होने का प्रतिपादन है. तो फिर हम यहाँ अनुभवगामी विधि को कैसे समझ सकते हैं इस कंटेक्स्ट में? क्योंकि इससे जो मुझे समझ आ रहा है कि अनुभव के बाद ही अध्ययन स्पष्ट होता है. अनुभव सह अस्तित्व में होने का स्पष्ट अध्ययन करा देता है. तो फिर हम भैया मैं बोलूं? हाँ जी, मैं बोलूं? भैया. हाँ, यानी कि ये मेरा प्रश्न अब तक था, इस घड़ी तक, पर अभी मुझे यानी कि 1-2 दिन से ख्याल में आया है कि अनुभवगामी पद्धति से ऊपर जाते जाते जब अनुभव हो जाएगा तब अपन भी जब नीचे आएंगे वो प्रमाणित में आएंगे अपन. जी तो भैया, मैं भी ऐसे ही देख रहा हूँ इसको. हाँ, यानी कि अनुभवगामी पद्धति से जाएंगे तो अनुभव तो होगा ही. तुलन के बाद में जिस तरह से भी चित्रण वगैरह होता जाएगा, साक्षात्कार या ये जिस तरह से आगे, तो अनुभव तो होना ही है. और अनुभव होने के बाद की जो बातें हैं, वो प्रमाणित होना तो अनुभव के बाद ही होगा. तो मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था, सारी किताबें में सब कुछ अनुभव
प्राप्त किया उस व्यक्ति के बारे में, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे। अब पता लग रहा है कि हमको अनुभव, यानी कि दिस इज, यहाँ जाना है और यहाँ जाने के बाद कैसे रहना है और क्या क्या होगा, उसकी बातें हैं। किशन हाँ भाई कुछ क्लियर हुआ? हाँ मैं भी अपने हाँ, शब्दों में नहीं रख दूं थोड़ा सा। हाँ नहीं, ठीक बात है भैया, लेकिन थोड़ा सा इसमें बोध तक की स्थिति तो स्पष्ट होती है, लेकिन हम्म बोध के जो अनुभव के अंदर जो परिमार्जन है, हम्म या जो कहें हम प्रत्यावर्तन है, हम्म वो स्पष्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि ये जो पठन, श्रवण, मनन, अध्ययन जो है, हम्म बोध तक तो मुझे स्पष्ट हो पाता है इस हम्म प्रैक्टिस हम्म में, हम्म लेकिन बोध हम्म के बाद की जो यात्रा है या जो जंप हम्म है, वो हम्म वो स्पष्टता नहीं बन पाती है, क्योंकि हम्म अनुभव का मतलब तो है कि अस्तित्व जैसा है वैसा देख लिया, आपने हम्म देख लिया, बाबा जी हम्म ने देख लिया, उस रोशनी में हम बोध तक पहुंच सकते हैं। हम्म। इन बोध के बाद की यात्रा कैसे है, वो स्पष्ट नहीं, नहीं हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो कैसे है उसको अभी भैया थोड़ा सा पेंडिंग में भी रख सकते हैं। सबसे पहले इतना क्लियर हो जाए कि वो भी कुछ यात्रा होगी तो सही ना, है ना। आफ्टर बोथ आल्सो देयर इज समथिंग टू बी डन, समथिंग टू बी कंप्लीटेड, है ना। इतना एक बार जब ध्यान में आता है, जिस तरह से, जिस क्लियरिटी के साथ में बाबा जी ने जीवन को बारे में बताया है ना, मतलब जीवन, ये पांच जो है ये कलेक्टिव है इनका, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा का, राइट। उसके बाद में ये जीवन का गठन कैसे हुआ, इसके बारे में बाबा जी ने बताया, ये गठन पूर्ण परमाणु है। अभी तक ना हमारे पास में ये सूचना के रूप में है, मतलब अनुभव का मतलब ये हो गया कि मेरे को उतनी स्पष्टता हो गई जितनी बाबा जी को स्पष्टता थी। तो मुझे होगी या नहीं होगी ये एक सेकेंडरी क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा तो अपने में कल्पना में आता ही है। वी कैन वेरी वेल विजुअलाइज भैया कि देयर कैन बी मोर पीपल ऑल्सो हु अंडरस्टैंड एवरीथिंग। इट इज नॉट ओनली दैट बाबा जी वॉज द फर्स्ट एंड द लास्ट पर्सन, राइट। तो वो जो हर व्यक्ति वो इस सब को समझेगा, और समझेगा तो उसके बाद में जिसके भी सवाल होंगे उन सब सवालों का जवाब दे पाएगा। हम लोग अभी उस स्थिति में नहीं है, है ना। हमारे पास में गठनपूर्ण कुछ होता है, वो सूचना है, हमें वो लॉजिकली वो सूचना स्वीकार होती है। लेकिन मैं अगर कहूं कि हमने उसको फील कर लिया है, एक एक्सपीरियंशियल फीलिंग है हमें, लाइक मैं अपने में उसको अभी काफी उससे कम ही पाता हूं। तो अनुभव में ये सारी चीजें भी होंगी भैया, दैट इज व्हाट इज द बैलेंस पार्ट, हाँ नहीं भैया, रिमेनिंग वो पार्ट। तो आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक लग रहा है, और इवन अनुमान भी बन पाता है, नॉट ओनली हम्म तर्क, अनुमान हम्म। के आधार पर भी हमें लगता है कि हाँ ऐसा है, ऐसा हाँ हो तो अभी सकता है। अभी हाँ तो अभी अनुमान ही है। ये अनुमान जब जो है ये कॉन्फिडेंस में बदल जाएगा, एक सर्टेनिटी में बदल जाएगा कि ऐसा ही होता है, फिर उसको हम कहेंगे कि अनुभव है। ठीक है भैया। ठीक है। उमा शंकर भाई ने हैंड रेज किया था, कुछ कहना चाह रहे हैं भैया? नहीं भैया, भैया सबसे पहले नमस्कार। आ, नमस्कार भैया। बस भैया इसी पर थोड़ा सा मैं भी रखना चाह रहा था कि जो अनुभव मूलक विधि है और जो अनुभवगामी विधि, अनुभव मूलक विधि से तो बाबा जी किए हैं, क्योंकि प्रकृति खुला हुआ है या सहअस्तित्व खुला हुआ है सबके लिए, है ना। तो वो अपना दर्शन खुद भी कर सकते हैं, लेकिन जब मध्यस्थ दर्शन के थ्रू जाते हैं तो उसमें जो बताया गया है, जैसे जैसे बताया गया है, उन बातों को अगर फॉलो करते जाते हैं तब भी हम वहीं पहुंचते हैं, है ना। तब भी हम हम्म वहीं पहुंचेंगे, यही बात कहना था। तो थोड़ा सा हम्म दिक्कत आ जाती है कब, जब हम अनुभव मूलक विधि को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, जबकि हम अभी अध्ययनगामी विधि के द्वारा अनुभव करना चाहते हैं। हम्म तो ये थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो जाता है, सभी को दिक्कत आता है जो उनको फॉलो करना। तो वो तो एक अलग मेथड है, उसमें बहुत ज्यादा चीजें जो है, समाधि और भी चीज की जरूरत पड़ता है। जो अनुभव मूलक विधि है उसमें जो बाबा जी ने किया था, तो वो तो उधर जाना तो है नहीं, वो सबके लिए सुगम भी नहीं है। वो चीजें, ये चीजें सुगम है जो बाबा जी ने बताया है, उनको अगर हम मानते हुए करते हैं तो जहां तक बाबा जी पहुंचे हैं वहां तक हम पहुंच पाएंगे। ये बोध को भी हम दो टुकड़ों में देखें, जो भैया बोल रहे थे, तो एक अनुभव मूलक बोध होता है और एक होता है कि हम अब अध्ययन क्रम में चल रहे हैं।
तो अध्ययन क्रम में चल रहे हैं तब बोध होता है। तो अध्ययनगामी बोध और अनुभव मूलक बोध दोनों में थोड़ा सा अंतर, थोड़ा नहीं बहुत अंतर है। एक दर्शन कर लिया है और एक दर्शन किया नहीं, बस उनके थ्योरी पार्ट को जान लिया है, इतना समझ में आता है। तो धीरे धीरे एक एक चीज का हमको अनुभव होते जाएगा तो पूरा सहस्तित्व क्लियर होते जाएगा, जैसे जैसे क्लियर होते जाएगा। एक एक चीज का बोध होता जाएगा, अनुभव तो पूरा ही होगा, मतलब हाँ बोध हाँ एक हाँ, एक सॉरी चीज का सॉरी सॉरी, होगा। हाँ सही कर, एक एक चीज का बोध होते चला जाएगा। जैसे बोध होता चला जाएगा तो वो बुद्धि में सब कुछ स्पष्टता के साथ रखते जाएंगे, जिसको आप अभी बोल रहे थे कि विश्वास मेरा पूरा बढ़ता चला जाएगा। फिर मैं दूसरों से प्रभावित कम होऊंगा और जो सहस्तित्व जैसा है उसको वैसे देख पाने में सक्षम रहूंगा। जैसे जैसे ये पूरा क्लियर हो जाएगा और मैं जब पूरा पूरा ये क्लियर हो जाएगा, मतलब पूरा हो जाएगा बुद्धि में, तो मैं अनुभवित हो जाऊंगा। बस इतना ही मेरे को बिल्कुल ठीक है, ठीक है, गुड, थैंक यू भैया। तो कृष्ण भाई, एक चीज जो है ना इसमें, आई डोंट नो कि मेरे को ऐसा लगा कि शायद कहीं पे कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, तो आई 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 फील लाइक शेयरिंग इट, जहाँ पे मैं खुद काफी देर तक अटका रहा, कि ये जिसको हम अनुभवगामी विधि कह रहे हैं और एक अनुभव मूलक विधि है, राइट। तो अनुभवगामी विधि से भी चलते हुए जब हमारा अनुभव कंप्लीट हो जाएगा तो उसको हम, उसके बाद में जो हमारा जीना शुरू होगा वो अनुभव मूलक विधि ही होगी, राइट। ये एक ध्यान में रहे, मतलब ऐसा नहीं है कि बाबा जी ने सीधा अस्तित्व से समझा तो बाबा जी अनुभव मूलक विधि से जिए, और हम अभी अनुभवगामी विधि में है तो हमारा अनुभव हमेशा अनुभवगामी विधि वाला रहेगा। हम भी जब पूरा समझेंगे तो हम भी वही समझेंगे, अगर अगर पूरा समझे हैं तो जो बाबा जी ने दूसरे रास्ते से जा करके समझा था। You know, in one of the sessions, in I think in the first session of this book, शायद उसका रिकॉर्डिंग भी कहीं पे अवेलेबल होगा, आई फील टेम्प्टेड टू शेयर दैट एक्सपीरियंस कि I remembered that when I was in college, in high school, हमारे यहाँ से एक माउंटेनियरिंग का, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेनियरिंग का कैंप गया था कहीं पे माउंटेन्स में। आई वॉज पार्ट ऑफ दैट एंड सम 50-60 स्टूडेंट्स वर आल्सो देयर। तो देयर वर सम एक्सपर्ट्स आल्सो हु वर आवर टीचर्स एंड गाइड्स एंड केयर टेकर्स। They explained and demonstrated to us in the first 3-4 days some basic techniques of rock climbing and mountaineering, and then they divided us in some 4 or 5 batches or groups and gave us some 4 or 5 areas. Like this group will climb these rocks, this second group will climb these rocks, and then they told us that the team will be successful when everyone reaches the top. Now, in every group, there are some participants who are very skilled and very agile, so it is easy for them to climb. But then there are some others also who are not so fit or not so agile. So gradually, then they explained to us that the true technique for the whole team to reach at the top is that the team first of all identifies 1 or 2 best members of the team who can even take the difficult terrain or path and go to the top. And once they reach the top, they have a bird's eye view of all around area, and then they can see that, then they tell to the people at the bottom that, see, we took a difficult path, but it is not essential that everyone comes through this difficult path. There are some alternative path also available. We can see it from here, and we suggest that you take that path so you will easily reach the top. Okay, so I could relate it very well with this realization rooted method, which is Anubhav Mulak Vidhi, versus realization oriented method, which is Anubhav Gami Vidhi. So the first 1 or 2 students who reach, participants who reach the top, they are like going directly.
but then they are able to guide that this is, although we took this path, this is not the easiest or the most convenient path. There are easier paths available, and then they suggest to everyone else that you take those paths. So this is what I think Babaji is also doing. He understood from the coexistence or existence directly, and then he understood that existence is coexistence, है ना. उन्होंने समाधि संयम ये सब कुछ जो किया और इससे पहुंचे, but then having reached that state of realization, he is suggesting that although I took this path, this is not the easiest path. Not many people will be able to take this path, but there are easier paths available to reach this same place. Okay, and this adhyan, this study is what he has suggested actually. तो मेरे को ये माउंटेनियरिंग वाला एग्जांपल जो है वो उससे ये अनुभव मूलक विधि और अनुभवगामी विधि वाला जो है वो मेरे को अच्छा रिलेट होता हुआ दिखता है. तो आई फेल्ट लाइक रिपीटिंग इट विद ऑल ऑफ यू हियर, ऑल्दो आई हैव डन इट वंस बिफोर. जी भैया, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल दिया भैया आपने. इससे स्पष्टता बनी है. Because I think that we can stop here today, and एक बात बताइए, 12th November is the Diwali festival, although the festival is celebrated in the evening. So I have no problem in doing this session in the morning if it is okay with most of you. यस भैया, अगर आपको नहीं है तो फिर हमें तो कोई दिक्कत नहीं भैया. नहीं, मुझे भी नहीं है. देव भाई को भी नहीं होनी चाहिए. ही इज द की पर्सन. जी जी भैया, गुड, कर सकते हैं ना. ठीक है. सो फिर 12th नवंबर को क्या अच्छा हो गया ना भैया. एक ऑस्पिशियस दिन के दिन ऐसी बातें करेंगे तो नहीं, बिल्कुल ठीक है. दिवाली वैसे भी ज्ञान के लिए और समझ के लिए जो है रोशनी जो है वो ज्ञान की रोशनी है. तो हम कम से कम दिवाली वाले दिन जो है मतलब ये अपना ये वाला परस्यूट चालू रखेंगे. तो ये भी अपनी हमारी it will demonstrate our own seriousness towards the content and for our own understanding. Good. Anything else? Any sharing, any? वापस रिमाइंड करवा रहा हूँ आपको. मैंने एक रिक्वेस्ट किया था, क्योंकि आपका समझाने का तरीका है ना भैया, मैं ये कंपैरिजन या किसी को क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ, बट आपका जो समझाने का तरीका मेरे लिए पूरा पहुंच पाता है बात को. तो आप अगर और भी कोई सेशंस डिजाइन करें तो आप इन्फॉर्म करें भैया, तो वहां पे भी जुड़ के और अधिक लाभ मिल पाएगा. ऐसा मैंने पहले भी रिक्वेस्ट किया, क्योंकि पूरा संडे बहुत लंबा होता है. ठीक है. लेट मी आल्सो डिक्लेयर भैया, फॉर द टाइम बिंग दिस इज द ओनली रेगुलर सेशन व्हिच आई एम डूइंग. तो कुछ और रेगुलर करूंगा तो आई विल ऑफ कोर्स लेट इट बी नोन टू ऑल ऑफ यू. ठीक है. एंड मोस्ट ऑफ अस अंडरस्टैंड एक्चुअली हिंदी एंड इंग्लिश बोथ. उमा भाई आपकी बात बाद में सुन लेंगे. इफ स्पेंसर यू आर हियरिंग, आई एम ऑलवेज वेरी कीन टू हियर फ्रॉम यू. like I mean whether this bilingual reading which we are doing, like how much of it you are able to grasp and understand. Like it's always nice to get your feedback so that we can make any improvements. So I don't obviously speak very much Hindi. Like I can usually pick up on the context because we're reading the same thing, and then I can kind of follow a little bit where the conversation's going. But I can't follow everything. But I use that time in between. I think about what is being read, or I look up different translations or words. So it's not the time I use it well, even though I'm not able to follow the conversation, it still becomes like a study time for me. My question was, this translated version which we are presenting here and we are explaining it, does it go across well to you? I mean, that is the question. Oh yeah, that I think so. Like the translation, is it being communicated well? Yeah, I think along with the discussion points and explanation.
Yes, definitely. I think the translation is done very well, and I'm very glad it's opened up a new set of literature which was previously unavailable to me. So it's definitely very valuable. Yes. Okay. This verification, this frequent verification, from time to time from your side, will continue on doing it. And at any point of time, you think there are certain suggestions that you have, either related to the words or structure of sentences or overall process, please feel free to share with us. Sure. No, I can do that. Yeah. Great. Anyone else? उमा भाई, आप भी कुछ कह रहे थे? बस भैया हमको इतना ही कहना था कि आज आपने जो कर्म दर्शन और अभ्यास दर्शन में जो डिफरेंस बताए, है ना, ये हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं भी सोच रहा था कि ये कर्म दर्शन और अभ्यास दर्शन में डिफरेंस क्या है। तो आज आपने जो वो मेंटल वाली जो बात रिलेट कर दिए, वो एकदम बिल्कुल बैठ गई आप दिमाग में कि प्रैक्टिस दैट मीन्स मेंटल। मेरा कंफ्यूजन रहता था कि अभ्यास दर्शन या कर्म दर्शन मतलब अभ्यास दर्शन, ये दो दर्शन फिर किस लिए? अब समझ में आया जब आपने ये बोला, तो उनको समझ में आया कि यार ये यहाँ पर ये पॉइंट क्यों नहीं पकड़ में आ रहा था। जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया इसके लिए आपको। भैया श्री राम भैया को भी धन्यवाद, मेरे को तो उनसे समझ में आया था। सो इस तरह से ही गाड़ी आगे चलेगी सबकी। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। ठीक है, फिर इफ देयर इज नथिंग एल्स वी कैन क्लोज टुडेज मीटिंग। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फिर नेक्स्ट वीक विल मीट अगेन, सेम टाइम, सेम लिंक। थैंक यू, नमस्कार। ओके, थैंक यू भैया। Thank you. Namaste. नमस्ते। Namaste. नमस्ते।